Okay, children, we can start Hindi class with a prayer song, silent prayer. Okay. In the last class, we have studied that one lady who is sitting in the footpath, she is weeping, she is crying because her son, one and only son, died just before that day. The people around us are not speaking to her because they are well dressed. They didn't want to go to her because they are well dressed. She is in a toned dress and she is weeping. Then, listen, I will continue the lesson. First, you take page number 8, second paragraph. Then, children, take your pencil, write the meaning at the top. एक आदमी ने घृणा से एक तरफ धूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है. See, children, underline the meaning. Atmi means a man. Krina means hate. Thukna means to spit. S-P-I-T, spit. क्या जमाना है, जमाना, underline, जमाना, age, A-G-E. Next line, Behaya means shameless. S-H-A-M-E-L-E-S-S, shameless. Then, see the meaning fully. एक आदमी ने, one man who was standing there, घृणा से, with hatred, एक तरफ थूकते हुए, by spitting the other side, and he is telling that, क्या ज़माना है, what the age is this? जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता. The young son died just before that day. यह बेहया, the shameless lady, the old lady, दुकान लगा के बैठी है. She is here for selling things. They think that she needs money. She is greedy for money. So she is here for selling. Same paragraph. एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए, children, थूक means spit. S-P-I-T. जमाना, age. बेहया, shameless. S-H-A-M-E-L-E-S-S, shameless person, shameless lady is here. जो लोग वहाँ खड़े हैं, वे कहते हैं कि वे बेहया, निर्लज्ज बुढ़िया है. समझे बच्चे? नेक्स्ट, दूसरे साहब means here it is gentleman. G-E-N-T-L-E, gentleman. दाढ़ी खुजाते हुए, दाढ़ी खुजाना means touching the beard. B-E-A-R-D, beard. दाढ़ी खुजाते हुए, patting on his beard, कह रहे थे, he is telling, अरे जैसी नियत है, नियत means deeds,
नियत, नियत डीड्स। अल्लाह वैसे ही बरकत करती है, बरकत बिहेव्स, BEHAVES, according to our behavior, according to our deeds, according to our work, the gods give us blessings. Other man, other gentleman who is standing there says that according to our deeds, the God gives us blessings. Children, Allah means God, G-O-D, God. Clear? दूसरे साहब, the next gentleman, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, patting on his beard, कह रहे थे, he tells that, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत करते हैं। भगवान हमें इतना आशीर्वाद देता है कि हम जैसे दूसरों से बर्ताव करें उसी प्रकार हमें आशीर्वाद देंगे। क्लियर चिल्ड्रन? समझे? नेक्स्ट पैराग्राफ। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। Children, write the meanings. फुटपाथ का अर्थ है फुटपाथ, FOOT, फुटपाथ। दिया सिलाई की तीली, अंडरलाइन, दिया सलाई की तीली। मैच स्टिक, MATCH, मैच स्टिक। खुजाना, खुजाते, टू स्कॉर्च, SCORCH, स्कॉर्च। अरे इन लोगों को क्या है, द अदर मैन हु इज स्टैंडिंग देयर स्कॉर्चिंग हिज ईयर्स विथ ए मैचस्टिक एंड सेइंग दैट इन लोगों को क्या है, व्हाट इज दिस फॉर देम, ये कमीने लोग, कमीने मीन्स पुअर, कमीने, डर्टी, कमीने मीन्स डर्टी। लो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, दे आर नॉट केयरिंग देयर son or any relatives, they are only caring for getting money. इनके लिए, for them, बेटा बेटी, son daughter, बेटा son, बेटी daughter। कसम लुगाई, कसम पति, लुगाई, कसम लुगाई, पति पत्नी, पति पत्नी। धर्म, ईमान, हेरिटेज, रिलीजियस फेथ, रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस फेथ, FAITH, सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा, हियर इट मीन्स द earnings, the money. The people like this, the dirty people, one man says that these type of dirty people have only they are earning money. They have only decision, they are thinking about earning money. So, अरे इन लोगों को क्या है, इन लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन इसका बेटा है या बेटी है, पति है या पत्नी है, कुछ भी नहीं है इन लोगों को। एक ही है
मणि इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का विचार है उनके मन में। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? चिल्ड्रन, राइट द मीनिंग्स फर्स्ट। परचून, स्टेशनरी। परचून, स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। लालाजी, अनदर जेंटलमैन। चिल्ड्रन, लालाजी मीन्स लालाजी साहब जी, ऐसे अनदर जेंटलमैन। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब का अर्थ है मीनिंग, MEANING, मीनिंग। दूसरे के धर्म ईमान का अर्थ है फेथ। ख्याल, कंसिडर, CONSIDER, कंसिडर। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन, 13 मीन्स 13, 13 दिन का सूतक, इम्प्यूरिटी, IMPURITY, इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट, 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई खरबूजे। चिल्ड्रन, हियर इट इज खरबूजे। खरबूजे का अर्थ है पम्पकिन और मस्क मेलन, दैट इज स्वीट थिंग, नो, मस्क मेलन। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? सूतक आई रोट हियर, इम्प्यूरिटी। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? अंधेर मीन्स डार्क और बैड। डार्क, DARK, डार्क, और बैड, BAD, बैड। चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैराग्राफ अबाउट अनदर मैन। परचून के दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, द मैन, लालाजी, अनदर जेंटलमैन who is standing in the stationery shop says that, अरे भाई, ये ब्रदर, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है। कोई मरे या कोई जिए, इनके लिए कुछ नहीं है। The man who is standing in the stationery shop tells that, if anyone dies or dies or goes, they didn't consider them. पर दूसरे का धर्म ईमान तो ख्याल करना चाहिए। Even if they are not caring about themselves, they have to consider about others. They have to consider the faith of others. जवान लड़के के मरने पर the young son died, 13 दिन का सूतक होता है, the impurity,
13 days impurity falls on them. Children, in Hindu faith, if any birth or death occurs in a home, all the members have to keep some days as impure. They are sitting at home, they are not going any holy places, they are not walking around the road and all. They have to sit at home. So that is Sutak. Sutak means impure. They are considered as impure. जवान बेटे के मरने पर the young son died, 13 दिन का सूतक होता है, 13 days of impurity. Yaham और बा यहाम now she is सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठी है. Now here the young son died the day before that day, and she is now here. Today she is here for selling muskmelon खरबूजे. 1000 आदमी आते जाते हैं रोड से, सड़क से 1000 आदमी, thousands of people are going and coming. कोई क्या जानता है कि does anybody knows that इसके घर में सूतक है? Anybody knows that in his home there is impurity? In her home there is impurity? कोई इसके खरबूजे खा ले तो does anybody takes this खरबूजे and eat it? उसका ईमान धर्म faith कैसे रहेगा? How they can consider, how they can control their faith? क्या अंदर है? What a dark it is. Children, clear? Next paragraph. पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था. घर में उसकी बहू और पोता पोती है. लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था. खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती. चलो अंडरलाइन. पास पड़ोस, नेबरिंग. नेबरिंग, पास पड़ोस, नेबरिंग. NEIGHBOURING, नेबरिंग. दुकान मीन्स शॉप. उसके 23 मीन्स 23. बरस, ओल्ड. द सन इज ओनली 23 years of old. जवान लड़का था. जवान मीन्स यंग. YOUNG, यंग. घर में इन हिज होम उसकी बहू. बहू मीन्स डॉटर इन लॉ. बुढ़िया के घर में उसके पुत्र की पत्नी थी, डॉटर इन लॉ. पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन. बुढ़िया ग्रैंड चिल्ड्रन, GRAND. चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन. लड़के, लड़का. शहर, शहर मीन्स टाउन. TOWN, टाउन. 1.5 बीघा भर जमीन. 1.5 means 1.5 acres of land. बीघा भर जमीन. 1.5 बीघा भर जमीन. 1.5 acres of land. कचियारी करके, कचियारी
farming, F-A-R-M-I-N-G, farming. परिवार का निर्वाह करता था. निर्वाह करना means to protect, P-R-O-T-E-C-T. Children, look till that. See, he was the only man who is earning member in the family. बुढ़िया के एकमात्र पुत्र ही उस घर में कुछ काम करने वाला था. कोई काम के लिए नहीं जाता था और कोई. से पास पड़ों की दुकानों से पूछने पर द ऑदर हु इज यशपाल ने क्या किया? पास पड़ोस के दुकान में पूछ लिया. he asked the stationery shop. he asked the neighboring shops. 23 बरस का जवान लड़का था. They tell that she have 123-year-old son. और उसके घर में in her home बहू है, daughter in law है, पुत्र की पत्नी daughter in law, पोता पोती है. she have grandchildren also. लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कचियारी करना फार्मिंग, वो परिवार का निर्वाह करता था. the son is a earning member in the family and he is protecting this home by doing farming in the 1.5 acres of land in the town. खरबूजों की डलिया means basket. basket. बाजार में पहुंच जाकर by taking the basket with this खरबूजा, कभी लड़का स्वयं सौदे means selling. कभी मां बैठ जाती. sometimes when he is taking this basket of kharbuja in the market, sometimes he will sit, otherwise the mother will sit for the selling. खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती. Children, clear? Next paragraph. लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था. गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया. सांप ने लड़के को डस लिया. That is the thing. That is why she is weeping, crying. परसों, day before yesterday. परसों means day before yesterday. Day before yesterday. मुंह अंधेरे बेलों means early in the morning. Early, EARLY, early morning, MORNING. खरबूजे चुन रहा था means plucking, taking, PLUCKING, plucking. गीली means wet, WET, wet.
Made, made here it is fence. F-E-N-C-E. Taravat, taravat means a flat surface or valley. V-A-L-L-E-Y, valley. विश्राम करते हुए, taking rest. विश्राम करते हुए, taking rest. एक सांब पर लटके का पैर, सांब means snake. S-N-A-K-E. पैर पट गया means stamped or touched. T-O-U-C-H-E-D, touched or stamped. सांब ने लटके को डस लिया. डस लिया, bite. B-I-T-E, bite. Children, meaning परसों सुबह, परसों, as a day before that day, early in the morning, he went there for plucking the kharbuje. Then the gili made ki taravat mein, there are farming, no, there are wet places, and in the fence, one snake was there, it was resting, and the latka, the young man stamped him, and सांब ने लटके को डस लिया. He was bitten by the सांब, snake. Children, next. लटके की बुढ़िया माम, underline, old lady. Old lady. बावली होकर, mad, became mad. Mother got mad. ओछा को बुला लाई. ओछा means here it is one priest who is doing karma, who is doing karma and taking, suppose that he is taking the poison from the bitten man. Chadna phongna, here it is you write rituals, R-I-T-U-A-L-S, rituals. लटके की बुढ़िया माम बावली होकर, she became mad, and ओछा को बुला लाई, she called the priest, and ritual started. छाड़ना भूंगना शुरू हुआ. नागदेव की पूजा हुई. नागदेव means snake, snake god की पूजा, the worship of snake god started. They worshipped snake god. पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए. दान दक्षिणा means a donation. For puja, donation is needed. For doing puja, something is needed for the priest. घर में जो कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया. घर में, the family is very poor. Only they have rice, wheat flour and all. They gave all that for priest ओछा as दक्षिणा. अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया. माम, बहू और बच्चे भगवान से लिपट कर रोए. माम, बुढ़िया माम, बहू पत्नी, डॉटर इन लॉ, और बच्चे his grandchildren, her grandchildren. भगवाना, the name of the boy is भगवाना, से लिपट कर रोए. Hugged and cried bitterly, all of them. पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ,
दफे मीन्स टाइम. एक वक्त वह चुप हुआ. He became silent for that. And फिर न बोला. He didn't tell anything after that. सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था. बदन का अर्थ है शरीर, बॉडी. उसका पूरा शरीर काला पट हुआ था. काला, ब्लैक. उसका पूरा शरीर काला पड़ गया. Children understood? Okay. धन्यवाद.